in a female reproductive system, four major parts. Sometime question may come like explain the female reproductive system with respect to the internal genitalia. So that time you must be able to explain the those four parts, which include pair of ovaries, pair of ovary, pair of oviduct, rather we'll also call it as fallopian tube, then uterus and uterus, cervix and vagina. So these are the parts of internal genitalia. We had in a previous module we had seen about the structure of ovary and histology of ovary, some interesting facts which do take place within the ovary. Here we'll try to explain external ovary and other parts in the form of external genitalia, so that one shot you can read, you can rather remember these parts as far as your the writing of this question is concerned, that is explain female reproductive system. So with respect to this pair of ovaries, no doubt this female reproductive system का location is in abdominal region. Pelvis is a exact site of these organs where we have the pair of ovaries. So I can say here the ovaries are located in abdominal region is the first thing. Shape wise देखा जाए, they are rounded bodies है, almond shape है, and if we look into size wise, so almond shape है, just 3 centimeter by 1.5 by 1. This is length है, width है, thickness है. Now once we are thorough with this, these ovaries are held in a position from 3 sides. One, by the wall of the uterus. Second one, some muscles coming from the backside of the ovaries, या rather we say from dorsal part of our body wall. समझो ये dorsal part है, ये ovary है, तो ये dorsal part, ये ovary है. Now this ovary will be held like this. So what will happen? अभी ये जो दो मसल है dorsal wall से arise हुए हैं, so dorsal side से, यहाँ से they will be uterus से आएंगे, यहाँ से lateral body wall, as well as they are also being held by the fallopian tube. So the attachments जो है, attachments to the ovary, we have ligaments coming from 3 sides, that is dorsal body wall, lateral body wall and uterus, uterine wall. Uterus rather will use the uterine wall. So these are the 3. Now we got an अभी जो dorsal body wall से आएंगे, they are known as the suspensory ligaments. Uterus से जो आएंगे, dorsal body wall will be the mesovarium. Remember these names, mesovarium. Lateral body wall से आएंगे and uterine body wall से. तो जो dorsal body wall से we had given the name, uterus से जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? Ovarian ligament, ovarian ligaments, which comes from the uterus. And जो lateral body wall या pelvic region, ये हमारा जो hip region है, that is we call as an pelvic region. तो pelvic region का बाजू से आएंगे, they will be called as suspensory ligament. Suspensory ligaments. तो यहाँ पे कौन से आएंगे? यहाँ से जो आ रहे lateral body wall से,
दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यहाँ पे डॉर्सल बॉडी वॉल से जो आएंगे दे आर मेसोवेरियम एंड दीज आर दी ओवेरियन लिगामेंट्स। सो वी हैव these, yeah, this ovary being held by this one. Now there is one more attachment of the ovary by this funnel shaped part of oviduct that we'll see soon. But here we got pair of ovaries, मतलब ये दोनों साइड को है, so they are being present on either side of the uterus. And I told you कि ovary का location जो है it is slightly behind, below the oviduct and behind the oviduct. So try to recall this. Then what are the basic function of the ovary then? Here, just for the sake of continuation, we had studying ovary. Already this we had studied in a previous module. तो और डिटेल में चाहिए तो वो मॉड्यूल आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके फंक्शंस की हम बात करेंगे। ओवरीज का सबसे पहला फंक्शन है तो अंडा बनाने का है, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सो हियर फॉर्मेशन ऑफ ओवम। दूसरा, ओवरी में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स नोन एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन होता है कहां पे ओवरीज के अंदर। तो दिस वन इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ovary. Now let us jump on to the structure of second important part, that is a oviduct. Second important part of the female reproductive system, क्या बोलेंगे उसको? Oviduct. So one by one we will be able to clear with the things. So we have oviduct, also known as fallopian tube. This फैलोपियन ट्यूब का हम बात करेंगे तो ऑलरेडी पेयर है, दो है, to the right and the left side. Secondly, we have here 10 to 12 centimeter length oviduct. ओवरी से हॉरिजॉन्टल वे में से दे अराइजेस, सो वी से ओरिजिन या रादर इनका पोजीशन इज हॉरिजॉन्टल। ये आपको थियोरेटिकली लिखने के लिए काम में आएगा, बट एज फार एज आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन इज कंसर्न, जो हम रगड़ के निचोड़ लेने वाले हैं, गेटिंग इट और नॉट, तो वो हर एक वर्ड को भूलना नहीं है। तो साइज वाइज एनसीईआरटी का डायग्राम का नाम, जब भी आप एनसीईआरटी से कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसका जो नॉमेनक्लेचर दिया है, सपोज एनसीईआरटी में ये यहां से लाइन यहां पे ड्रॉ किया है ना, तो आपको भी वही हैबिट चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे यहाँ दिया है, आप यहाँ से यहाँ निकाल के लेके आते। एग्जाम में आपको ब्लैंक डायग्राम या डायग्राम दिया जाएगा एंड देन आस्क यू नेम 1 2 3 एंड 4, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, क्योंकि आपने डायग्राम आपके हिसाब से ड्रॉ किए हैं। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, मोर टू नो एंड स्पेशली डेटा जो एनसीईआरटी में दिया है, मे बी एज रिलेटेड है, मे बी मास है, कोई भी रहो, कुछ भी रहो, पक्का करना है। 360 में से 320 इज इजीली गेटेबल, बट हाउ टू, वो एनसीईआरटी को भगवान मानने का है, बस खत्म बात। तो यहाँ पे व्हेन वी कंसिडर दिस फैलोपियन ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, पेयर विथ द लेंथ ऑफ 10 to 20 है, alright, and then it is present near or from the peritoneal cavity. पेरिटोनियम वर्ड आपको बार बार आएगा, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड पेरिटोनियम। सो ये पेरिटोनियल, तो आपका पेल्विस में ये पेरिटोनियल कैविटी है, ऑलराइट। एंड जैसा हमने बोला कि ओवरी नियर टू द ओविडक्ट है, वैसा भी ओविडक्ट किसके नियर टू ओवरी है ना। ये बहुत एडे में निकालने को मस्त सेंटेंस रहते हैं, जब थियोरेटिकल वे में लिख नहीं पाते हैं ना, तो पोजिशनिंग ये ऐसा दिमाग काम में आएगा आपको। सो नियर टू ओवरी मतलब तू कहाँ पे रहता है, इसके बाजू में, मैं ये कहाँ पे रहता है, मेरे बाजू में, दोनों आजू बाजू में। अरे 3 लाइन हो गए ना भैया, याद रखो। तो ओविडक्ट हो गया,
नाउ ओविडक्ट का ओरिजिन कहां से, दे अराइजेस फ्रॉम द यूट्रस. सो इफ यू सी origin wise, origin, if you see origin wise, they arises from oviduct, sorry uterus, they arises simply from the uterus. And जैसा ovaries are supported वैसा ये भी सपोर्ट किया है. गेटिंग इट और नॉट? तो जैसा फैन लटकता है, घूम काम करता है, बट इट इज बीइंग सस्पेंडेड, इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय समवन. एक ट्यूब लगाते हैं, 2 स्क्रू से उसको सपोर्ट करते हैं, है ना, अपने आप यहाँ पे लगा दिया और वो बैठ गया, ऐसा नहीं होता है. सिमिलर वे में सपोर्ट इज बीइंग नीडेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. सो यूट्रस जो है इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय एक्सक्यूज मी डबल फोल्ड पेरिटोनियम. जैसे हमने पेरिटोनियल कैविटी होता है, तो पेरिटोनियल कैविटी में से कुछ मेम्ब्रेन्स आते हैं. तो यूट्रस इज सपोर्टेड इन अ पोजिशन बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, and that double fold we call it as mesosalpinx. mesosalpinx. So this mesosalpinx नाम है किसके लिए, जो यूट्रस को सपोर्ट करवाते हैं. सो हियर ये हो गया. नाउ ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब है, दिस फैलोपियन ट्यूब को लेट अस डिफरेंशिएट, रादर let us study in 3 basic parts, so it will be easy for us to understand. तो हमारे पास में ये 3 पार्ट्स है, जिसमें ये फर्स्ट यहाँ पे से ये ट्यूब निकालेंगे और ये ऐसा निकालते हैं. ये आपको समझने के लिए, ये एग्जाम में वगैरह ड्रॉ नहीं करना है. ये यूटेरस है, गेटिंग इट और नॉट? समझो ये यूटेरस है, ऐसा नहीं होता है, बट आप समझ लो. आप बोलेंगे ये क्या अजीब ड्रॉ किया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पार्ट, the second part and the third part. किसका? ओविडक्ट का. so this oviduct divided into 3 part. जो first part है, this one is known as infundibulum. पहला पार्ट कौन सा अपना? infundibulum. second जो मिडल पार्ट है, it is ampulla. देखो कोई भी बड़ा ट्यूब को हम एम्प्यूला बोलते हैं, हमने ब्रेस्ट में भी देखा था एम्प्यूलास, बराबर है नहीं है? हाँ, तो एम्प्यूला. एंड दिस पार्ट इज नोन एज इथमस. ये एस साइलेंट है, नहीं तो इस्थमुस बोलते जाएंगे आप लोग, ऐसा मत करो. दिस इज इथमस. 3 पार्ट्स है. सो सबसे पहला कौन सा है? इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम में भी देखो ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर नोन एज अ फिमरे. एंड ये नीचे अंदर जो है ये फनेल शेप पार्ट है. कौन सा? दिस वाला. तो दिस फनेल शेप पार्ट जो है, दैट फनेल शेप पार्ट को, ये फनेल शेप पार्ट है. तो ये फनेल शेप पार्ट प्लस फिमरे दोनों मिलके क्या हो जाएगा? सो इट विल बी इनफंडिबुलम. तो दिस फनेल शेप पार्ट जो इनफंडिबुलम है, उससे क्या अराइज हो रहा है? फिमरे अराइज हो रहा है. सो फनेल शेप पार्ट, वन मोर टाइम, ये फनेल शेप पार्ट इनफंडिबुलम है, उससे क्या अराइज हो रहा है? फिमरे अराइज हो रहा है. नाउ ये फनेल शेप पार्ट को यू गेट, यहाँ पे यू विल गेट अ होल और ओपनिंग. एंड दिस फनेल शेप पार्ट का ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टियम. ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, किंगडम प्लांटी. अब यहाँ पे वापस एक बार, ये फनेल शेप पार्ट है. कंसिडर दिस, ये पूरा मेरा हाथ एज अ ओविडक्ट. नाउ ये फनेल शेप पार्ट है, ये वाला ऐसा फनेल है, ये फिमरेज है. इसने क्या पकड़ के रखा है? ओवरीज को पकड़ के रखा है. ओवरी को बाजू में हटाओ, अब खुद करो ना ऐसा. एंड देन अंदर देखा जाए तो हियर व्हाट यू गेट इज ओपनिंग. तो ये जो ओपनिंग है, यहां से क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन व्हेन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये ऑस्टियम में से अंदर जाएगा. अंदर घुसने के बाद में इधर
आगे उसका ट्रैवलिंग होगा. सो हियर वी से कि दिस ostium which is the major opening. Now here we have this ampulla is the second part, but I hope first part you might have understood. तो यहाँ पे क्या रहेगा कि oviduct divided into three major part. The first one is कौन सा हो गया ये infundibulum, anterior free end, anterior free end क्या है infundibulum, that middle tube वाला part जो है and major portion है that we call it as an ampulla. So ampulla it is a major part, major part है, major tube है. Alright, and then we have a connection that is called as isthmus. This isthmus is very short. It just connects this oviduct to uterus. Now here infundibulum जो है ये rather this ये जो पूरा lining है it is lined by small या rather it is lined internally by ciliated epithelium. Now these ciliated epithelium are meant for किसके लिए movement. जैसे ये ओवम रिलीज हो जाएगा ये यहाँ पे आके बैठेगा तो ये ओवम हैज टू गेट ट्रांसपोर्टेड अहेड, आगे आगे जाना है तो ये सीलियरी मूवमेंट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस. टिश्यू चैप्टर रिमेंबर, ciliated epithelium is responsible for movement. Trachea up to alveoli, ciliated epithelium present. There are many more places that you know where this ciliated epithelium, but this is another prominent place. Now basic function क्या रहेगा पूरा ओविडक्ट का? सबसे पहला फंक्शन इज कैप्चर. किसको कैप्चर करेंगे? ओवम को. कैप्चर करने के बाद में कंडक्शन आगे लेके जाना है किसकी मदद से? सीलियर एपिथेलियम. एंड तीसरा इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है. फर्टिलाइजेशन मीन्स ये जो स्पर्म आएंगे, स्पर्म यहां से आएंगे, विल सी आफ्टरवर्ड्स. यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे ओम रहेगा, ये स्पर्म यहाँ से आएगा एंड ये दोनों फिर गाना गाएंगे क्या? हम साथ साथ हैं. और क्या बनेगा फिर? जाइगोट. तो दिस फॉर्मेशन जो है जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन कहां पे? ओविडक्ट में. अनदर नेम टू ओविडक्ट इज अ फैलोपियन ट्यूब. सो यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड और जस्ट टू रिमेंबर थ्री पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट यू मस्ट रिमेंबर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is oviduct. Sorry, next part will be uterus और mother's womb. ये ऐसा पार्ट है जहां पे हम सब लोग पूरा अपना 9 मंथ का जो लाइफ स्पैन है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में, सबसे अच्छे फॉर्म में, आरामदायक फॉर्म में, तो ये कहां पे हम बीत के आए? तो यूट्रस में. सो नेक्स्ट इज यूट्रस or womb. So we call it as an uterus or womb. Now this uterus और womb सबसे बड़ा पार्ट है तो इसके लिए थोड़े विशेषण भी हम ज्यादा देंगे. विशेषण इन द सेंस तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है तो उसको 10 बार अच्छे अच्छे नाम से बुलाते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा वैल्यू बढ़ता है. अभी इसका वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? ये कैसा है? बोलते जाएंगे सिंगल, लार्ज, मस्क्यूलर. अब ये मस्क्यूलर भी है कैसे? थिक वॉल्ड है, एकदम थिक मसल्स है. उसके बाद में पियर शेप्ड है. अभी ये पियर शेप है कि नहीं दैट आई डोंट नो, बट लिखना है. पियर शेप्ड है, ये डायग्राम के बारे में बात करो. एंड हाईली डिस्टेंसिबल है. हाईली डिस्टेंसिबल, इट्स लाइक अ बलून, जितने हवा भरेंगे उतना ये फूल जाता है, तो हाईली डिस्टेंसिबल है. दूसरा इसका लोकेशन ऑब्वियसली न पेल्विस रीजन. लोकेशन विल बी न पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन में भी इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. इन फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन द सेंस व्हाट कि अगर हम देखा जाए कि अपना पेल्विस रीजन है,
पेल्विस रीजन में बीच में क्या है, यूट्रस है, उसके पीछे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर है, पेल्विस है, एंड फ्रंट में और कुछ बाकी ऑर्गन्स रहेंगे, आप उसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। कौन, यूट्रस। साइज वाइज 8/5/3, 8/5/3 is the basic size. So here 3 है, some books will say 2. तो ये what we can say height है ना, width है, thickness है, which later on increases. जैसा ये oviduct are attached to peritoneal cavity by double fold of peritoneum called mesosalpinx, वैसा uterus is also attached to कहां पे, डबल फोल्ड पेरिटोनियम को। जैसा ये अटैच्ड वैसा यूट्रस भी एकदम पक्का बैठा हुआ है। एंड दिस डबल फोल्ड जो है, डबल फोल्ड पेरिटोनियम, इसको हम लोग बोलेंगे मीजोवेरियम, मीसोवेरियम। तो यूट्रस इज इन पोजिशन बाय किसके आशीर्वाद से, मीसोवेरियम के। नाउ ओवरऑल यूट्रस को वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट दिस वन इज अ बॉडी, और ये जो ऊपर वाला डोम शेप्ड है, दिस इज नोन एज अ फंडस, एंड दिस विल बी बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो बॉडी ऑफ यूट्रस। सो ओवरऑल 2 पार्ट्स है, कौन से, फंडस, फंडस विल बी upper or anterior dome shaped part, and body will be the major part. with fundus क्या होता है, fundus attaches to oviduct. then जो body जो है, this body का भी देखा जाए तो it is a tapering है, tapering at the end, ऊपर बड़ा है, नीचे नीचे छोटा है, and body का end जो है इट इज सर्विक्स। ये जो पार्ट है एंड ऑफ द बॉडी विल बी द सर्विक्स वाला पार्ट। नाउ दिस, ये होने के बाद में द वॉल की बात करते हैं हम लोग, मस्क्यूलर थिक पार्ट है ना, तो ये जो वॉल ऑफ द यूट्रस है इज कंसिस्ट ऑफ 3 layers डिपेंडिंग अपॉन their position outside to inside, peri, meso and endo। तो peri, meso and endo। meso के लिए we'll be using word myo, and here हम mother's menix, mother का layer, इसलिए we are going to use the word metrium। So perimetrium, myometrium and endometrium. So these are the 3 layers of uterus. Now perimetrium की बात करेंगे, outermost है, thin है, distensible है and serous in nature। serous word कहाँ आएगा आपको, आप you go to the structure of heart wall, epicardium, serous and याद करो, है ना। इसलिए ये पढ़ते पढ़ते पिछला पढ़ना जरूरी है। पिछला अगर आप कनेक्ट कर सकते हो समझने का, ठीक है, नहीं तो आगे जाने का नहीं, क्योंकि आगे क्या है, गड्ढा है। हाँ, याद रखते जाओ। सो आउटर मोस्ट है, थिन है, डिस्टेंसिबल है, डिस्टेंसिबल है, बेयर विथ माई हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग प्लीज। डिस्टेंसिबल के साथ साथ ये कैसा है, it is made up of serous in nature। okay, what is the serous, that you can find it out। so ये जो outer most membrane है पेरीमेट्रियम, ये भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन उसको बनाने में is helpful। पेरिटोनियल मिडल वन थिक है, means major thickness to the uterine wall is given by this middle layer, and this middle layer में ये सारे smooth muscles होते हैं। go to endometrium, innermost
अभी नाम आया ना तो ये पहला पहला लाइन तो आपको आना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। एंडोक्यूब बोला है, मायोक्यूब बोला है, मीसोक्यूब बोला है। मायो इज मसल से बना हुआ। सो इनर मेम्ब्रेन, नाउ इनर मेम्ब्रेन इज हाईली थिन and always show changes and consist of epithelium, that too glandular epithelium, for secretion of various kinds of fluid. Not only glandular epithelium, it also consists of connective tissue, so we say it is vascular as well. Means ये outermost तो glandular रहेगा, उसका immediately it will be a vessel वाला, vascular. So glandular epithelium supported by various vessel layers. तो ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मदर्स वूम्ब और वी से की यूट्रस. नाउ आफ्टर द यूट्रस which ends up into a part known as, I hope जैसे मैं रब करने लगता हूं आपने क्या करना है, पॉज इट, पूरा लिख लीजिए, रीड इनटू द टेक्स्ट बुक, ट्राई टू विजुअलाइज, नहीं हुआ वॉच वन मोर टाइम एंड देन गो अहेड. बेस्ट मेथड है. इसका फायदा एक है, आप रुक रुक के इसको सुन सकते हैं, बराबर है. जो आप बहुत बार क्लास में लाइव लेक्चर में आप हमें नहीं पूछ सकते हैं, है ना, शर्म आती है पूछने में. यहाँ पे शर्म करने की जरूरत नहीं है. गेटिंग इट और नॉट. लास्ट पार्ट है सर्विक्स. लास्ट पार्ट इज सेकंड लास्ट पार्ट, वी से सर्विक्स है. सर्विक्स द लोअर मोस्ट नैरो सिलेंड्रिकल ओपनिंग है. लोअर मोस्ट है नैरो ओपनिंग. ऑलराइट. अभी सर्विक्स जो है ये छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा ट्यूब है. सो आई ड्रॉ लाइक दिस आपको समझने के लिए. ये छोटा ट्यूब सर्विक्स है, ये अपने हिसाब से ड्रॉ किया है. एक्चुअल कैसा है वो आप देख सकते हैं. ये साइड को यहां पे क्या है, क्या यहां पे स्टमक रहेगा नहीं, यहां पे क्या रहेगा, यूट्रस. एंड ये आगे वाला फोल्डेड पार्ट जो है, ये फोल्डेड पार्ट विल बी वजाइना. ये बीच वाला पार्ट इज सर्विक्स. तो ये जो सर्विक्स का कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन यहां पे भी कुछ मसल से, यहां पे भी मसल से. दिस इज नोन एज इंटरनल ओएस एंड दिस विल बी एक्सटर्नल ओएस. यहाँ पे एकदम जबरदस्त स्पिंक्टर्स रहते हैं, सर्विक्स स्पिंक्टर्स, सो दैट ये पूरा बेबी 9 मंथ में जो बढ़ता है सर्वाइकल मसल्स की वजह से वो होल्ड होता है, नहीं तो कभी भी बाहर आ जाएगा. बराबर एक नहीं है. तो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू सर्वाइकल मसल्स या सर्विक्स के स्पिंक्टर्स को, जिसने हम लोगों को पूरा 9 मंथ अंदर रखा है. गेटिंग इट ना. सो नेक्स्ट टू सर्विक्स इज वजाइना. ऑलराइट. सर्विक्स इज द पार्ट जहां पे अगर यूटेराइन कैंसर होता है तो सबसे पहले वो सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन फीमेल में. वजाइना इज अ लास्ट पार्ट. ऑलरेडी वजाइना के आगे के लेयर वी हैड स्टडीड, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, देन लैबिया माइनोरा के बाद में मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमेन, याद करो. हाँ, तो वजाइना हाईली कोलैप्सिबल है. हाईली collapsible in the sense composed of smooth muscles. all right. जैसा अपना this thing trachea collapsible है, what we can say esophagus collapsible है, but हमारा trachea collapsible है, but वो collapsible नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए उसको क्या कवर्ड है, सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट है. तो ट्राई टू कम्युनिकेट. कोलैप्सिबल इन द सेंस वेरी स्मूथ मसल्स है, उसका शेप इमीडिएटली चेंज होगा, इमीडिएटली रिस्टोर होगा, तो वी से इट इज हाईली कोलैप्सिबल है. देन मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, रादर स्मूथ मसल्स अलोंग विद द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सो वी से दे आर फाइब्रोमस्क्यूलर. नाउ देन 7 to 10 सेंटीमीटर का लेंथ में है, 7 to 10 सेंटीमीटर. एंड दूसरा ये
ओपनिंग रादर इसका जो स्ट्रक्चर है फाइब्रस ओपनिंग है, एंड देन ओपनिंग इनिशियल पार्ट में यहाँ पे पार्ट दैट इज नोन एज हाइमेन इज प्रेजेंट. सपोज ये वाजाइनल ओपनिंग है, लोअर पार्ट में व्हाट यू गेट इज अ हाइमेन. मोर इंटरेस्टिंगली वजाइना का ये जो 10 सेंटीमीटर का ट्यूब है उसका इनर लाइनिंग के जो सेल्स है, ट्राई टू रिकॉल दिस, रिमेंबर दिस, इनर लाइनिंग के जो सेल्स है दे स्टोर ग्लाइकोजन. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन. नाउ दिस ग्लाइकोजन is being utilized by lactobacilli, especially present in this vaginal tube. These lactobacilli convert this glycogen into acidic substance, where this acidity of vagina and vaginal membrane will be maintained. This prevent fungal infection because ये एक very short membrane में always open to outside. So to prevent all these things, what we have is this nature, जिसने क्या किया है, या natural acidity maintain किया है. So nature is great, but more importantly, vagina is a passage. Function wise देखा जाए तो सबसे पहले ही हमारे लिए पैसेज है. हम लोग वो वजाना से बाहर आते हैं, वो बाहुबली जैसे मस्त एकदम. तो वजाना एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर पैसेज ड्यूरिंग द पार्चुरेशन टू द बेबी. दूसरा, इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. भी हम शॉर्टली इसके इमीडिएटली बाद में वी आर गोइंग टू सी विद द मेंस्ट्रुएशन. सो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है इट इज बीइंग गिवन आउट थ्रू वजाइना. तीसरा, इट एक्ट्स एज अ पैसेज टू द पेनिस फॉर कॉपुलेशन. सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे दिस पेनिस इज बीइंग इंसर्टेड इनटू वाजाइनल ट्यूब. सो इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर three things. Alright, and last but not the least, prevent fungal infection. So here female reproductive system is being explained so that आप एक बार उसको डायग्राम के साथ में नोट करेंगे तो आई थिंक it will be much more easier for you people to understand.